Right. You can unmute now. Katham Bhishmaham Sankhe. Katham कथं भीष्महं Bhishmamaham संखे Right. Katham Bhishmamaham Sankhe. कथं कथं भीष्महं संखे संख्ये Dronam cha Madhusudana. Dronam cha द्रोणं च Madhusudana. मधुसूदनः So we'll recite that entire line. Katham Bhishmamaham Sankhe. Dronam cha Madhusudana. Please repeat. Katham कथं कथं Bhishmamaham भीष्महं Sankhe. संखे द्रोणं Dronam cha च Madhusudana. मधुसूदनं Ishubhi Pratiyotsami. इषुभिः Ishubhi Pratiyotsami. प्रतियोत्स्यामि Pujarhavarisuddhana. पूजा Pujar. हविषूदन सूदनः So we'll recite the last line. Ishubhi Pratiyotsyami. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रतियोत्स्यामि पूजा Pujarhavarisuddhana. धनः हविषूदनः Varisudhana. There is no ha. Okay. Perfect. So let's get into the meaning of this shloka. Katham. Katham is how. Katham is how. How shall I? Something like that. Arjuna, I have told in the previous chapter, Arjuna means white. जो श्वेत वर्ण के हैं, जिनके कार्य एकदम शुभ्र है, स्टेनलेस है, who is pure in actions, he is called Arjuna. ये श्लोक स्टार्ट होता है अर्जुन उवाच. कथम. कथम भीष्म. कथम is a अव्यय. How. कथम is how. भीष्म. भीष्म is जो भीषण प्रतिज्ञा लेता है, awful, dreadful, fearful, उनका नाम है भीष्म. भीष्म गुणवाची शब्द है, नाम है. तो भीष्म रफली ट्रांसलेट्स टू awful, dreadful. बल्कि यहाँ पे अर्जुन अपने ग्रैंडफादर को संबोधित कर रहे हैं. कथम, हाउ. भीष्म इज अर्जुना's grandfather. Bhishma in turn means awful, dreadful. Aham is I. Katham Bhishma Aham Sankhe. Sankhe is battle, battlefield. Remember, there's a slight difference. Sankhya and Sankhya. Sankhya. If there is a dash on A, it becomes Sankhya. Here it is Sankhya. Sankhya is battle and Sankhya is Sankhya Yoga, analytical knowledge. So, Katham Bhishma Aham Sankhe. How will I fight Bhishma? That's the meaning of first line. Katham, how, Bhishma, grandfather, Aham, I, Sankhe, in battle. Dronam is Drona. Drona means a pot, typically means a pot. Here it refers to Dronacharya, Guru Dronacharya. Cha is and, Bhishma and Dro. Bhishma Dronancha. Bhishma and Drona. Cha is again Avyaya. Madhusudana. Madhusudana is the slayer of Madhu demon. जो मधु राक्षस का वध करने वाला है. श्री कृष्ण परमात्मा का नाम है मधुसूदन. इशुभी. इशुभी means with arrows. Pratiyotsyami. Pratiyotsyami in the sense to fight against, attack. Ishubhi Pratiyotsyami. Pujarha. Pujarha means who are worshipable.
पूजाय अर्ह इति पूजार्ह, worthy of worship. Puja is honor, worship, respect, veneration to superiors or gods. So here Drona and Bhishma are पूजार्ह. भीष्म और द्रोण पूजा के योग्य है, वो दोनों वर्शिपेबल है, पूजा के योग्य है. उनके अगेंस्ट में बाण कैसा चला हो, इशु भी उनके अगेंस्ट में इशु भी इज विथ एरोस प्रतियोत्सामी, फाइट अगेंस्ट, अटैक. उनके अगेंस्ट में बाण कैसे चलाऊं जो वर्शिपेबल है, हु आर रेवर्ड, हु आर ऑनर्ड. वो ऐसे लोगों के साथ जो वर्शिपेबल लोग हैं, उनके अगेंस्ट में बाण कैसा चलाऊं. मधुसूदना अरिसूदना. मधुसूदना इज again a name of Shri Krishna Paramatma, slayer of Madhu demon. Arisudana is destroyer of enemies. Again the name of we will see in detail why Shri Krishna Paramatma is called Madhusudana. I will narrate that story later on. बहुत लंबा स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा मधुसूदना करके क्यों कहते हैं, अरिसूदना करके क्यों संबोधित किया गया है, पहले भगवान करके संबोधित किया गया है, अभी गुणवाची नाम से श्री कृष्ण परमात्मा को क्यों संबोधित किया जा रहा है. तो उसका तात्पर्य इतना ही है कि हाउ कैन आई शूट एरोस इन बैटलफील्ड ऑन मेन like Bhishma and Dronacharya, who are worthy of my worship. तो मैं भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे श्रेष्ठ लोग जो पूजा के योग्य है, उनके अगेंस्ट जो पूजार्ह है, जो पूजा के योग्य हैं, जिनको पूजा करना चाहिए, उनके अगेंस्ट में एरो कैसा, बाण कैसा छोड़ दो, ये इसका तात्पर्य है. Now we'll get into the nuances of the shloka. Now, यहाँ पे क्या था? Arjuna had panic attack, so he collapsed in his chariot. ये फर्स्ट अध्याय के बाद. Now second अध्याय में हमने देखा तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः. तो कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम. ये कश्मल, ये मेंटल वीकनेस तुम्हें कहाँ से आया इस परिस्थिति में, इस क्राइसिस में. अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना. ये आर्य लोगों के लिए उचित नहीं है. अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, ये जो तुम काम, ये जो तुम कर रहे हो वो स्वर्ग के लायक नहीं है. स्वर्ग के द्वार ओपन नहीं होंगे और तुम्हें अकीर्ति मिलेगा. अकीर्तिकरम अर्जुना, ये देखा हमने. फिर लास्ट में देखा क्लैब्यम मास मगमः पार्थ. ये दोनों श्री कृष्ण परमात्मा बोलते हैं. श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को निंदा करते हैं उसको उठाने के लिए. क्लैब्यम, ये क्लैब्या अवस्था तुम्हें क्यों आ गया है, इनडिसाइसिवनेस क्यों आ गया है. मास मगम पार्थ नई तत्व उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है. क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुच्छ है. ये हृदय का वीकनेस, हृदय दुर्बलता, ये मेंटल वीकनेस त्याग दो. त्यक्तोत्तिष्ठ, इसको त्याग करके उठो हे अर्जुन. यहां तक हमने देखा. ये दो वर्ड्स, बहुत कठोर शब्द श्री कृष्ण परमात्मा यूज करते हैं. नाउ श्री कृष्णा's words, as in the words he used in verses 2 and 3, jolted Arjuna out of his panic attack and brought him to a state where he was ready to have a conversation. अभी वो ये जो कृष्ण ने प्रयत्न किया क्लैब्य बोल के, हृदय दौर्बल्य बोल के, उसको ईगो को उठाने की, ट्रिगर करके उठाने की जो कोशिश की, उस कोशिश के परिणाम श्री कृष्ण के कठोर शब्दों ने अर्जुन को पैनिक अटैक से बाहर निकाल दिया. ऑल्दो इट इज टेम्पररीली अर्जुन को पैनिक अटैक से बाहर निकाल दिया और उसे ऐसी स्थिति में ले आया जहां वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गया. एटलीस्ट नाउ ही इज रेडी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. अभी अर्जुना हैज नॉट वेंटेड आउट फुल्ली, अभी भी उसके दिल में कुछ है. अभी क्योंकि श्री कृष्ण परमात्मा ने उसे क्लैब्य कहा, यूनक कहा, किन्नर कहा, हृदय दौर्बल्य, त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, ये सबको त्याग करो करके बोला. तो अर्जुना
उसको एड्रेस करना चाहता है। नाउ Arjuna's arguments from previous chapter as well as previous verses remain unanswered. Therefore, he continued to insist on relinquishing the war. अभी चूंकि पिछले अध्याय से और अभी सेकेंड चैप्टर में भी कुछ वर्सेस अर्जुन ने बताया, अर्जुन के तर्क का उसको उत्तर नहीं मिला। वो अर्जुन ने जो तर्क रखा वो अनुत्तरित रह गया। श्री कृष्ण परमात्मा ने उनको सोल्यूशन नहीं दिया, इसीलिए वो युद्ध छोड़ के भाग जाने का प्रयत्न कर रहा है। अब इसीलिए वो पूरा युद्ध छोड़ देने का निर्णय ले रहा है। अभी गीता ज्ञान शुरू नहीं हुआ है। द गीता नॉलेज स्टिल हैज नॉट बिगन। सिर्फ श्री कृष्ण परमात्मा, कृष्णाज एडवाइस टू गेट अप was that of a friend. कृष्ण की जो सलाह थी, ये जो वर्स 2 एंड वर्स 3 में कृष्ण जो सलाह दिए, वो एक दोस्त और सखा के तौर पे दिए। अर्जुन उठो, उत्तिष्ठ परंतपा, तुम श्रेष्ठ वॉरियर हो, उठ जाओ, और ये जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता। तो एज अ फ्रेंड कृष्णा एडवाइज्ड अर्जुना. So what Arjuna intended to do during the battle was not going to take him to heaven, much less it would defame him. And Krishna had told the same thing to Arjuna. अर्जुन जो युद्ध छोड़ के भागना चाहता था, अर्जुन जो करना चाहता था, उससे स्वर्ग तो नहीं मिल पाता उसको। स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते। हमने सुना वो अस्वर्गीयम था, स्वर्ग के लायक नहीं था उसका कार्य, और उनका श्रेय कम हो जाता, उनका वर्चस्व कम हो जाता। अकीर्तिकरम, वो जो कर रहा था वो अकीर्ति के लायक था। ये सब श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को अभी तक बताया। जो भी श्री कृष्ण परमात्मा अभी तक बताया वो सिर्फ अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए ही था। अभी तक ज्ञान शुरू नहीं हुआ है। एवरीथिंग व्हाट श्री कृष्ण परमात्मा सेड टिल नाउ, दो श्लोका, was just to boost Arjuna's moral. वो सिर्फ अर्जुन का मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे थे। अभी तक ज्ञान शुरू हुआ नहीं ना। अभी क्या हुआ, अभी अर्जुन भड़क गए। Now, naturally, Arjuna was surprised that Krishna was saying things like, "Don't get into this eunuch-like state, किन्नर जैसा मत बनो," and so on, since he was not accustomed to be spoken to as a weakling. ये उसको अर्जुन ऐसा आदी नहीं था ऐसा सभी एडजेक्टिव सुनने के लिए। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया कि कृष्ण किस तरीके का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस किन्नर जैसी अवस्था में मत पड़ो, कुछ इस तरह क्लैभ्यावस्था में मत पड़ो, इनडिसीजन मोड में मत पड़ो, ये कहाँ से आ गया तुम्हें हृदय दौर्बल्यता, ये अनार्य है, ये सभी कठोर शब्द श्री कृष्ण प्रयोग किए। ये सुनने के आदि अर्जुन नहीं था। ये सब बहुत ही उसके लिए पहली बार हो रहा था, क्योंकि ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कोई अर्जुन के सामने कर ही नहीं पाता था, क्योंकि वो सब दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर और सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी है। नाउ गिवन द वर्ड्स श्री कृष्णा यूज्ड, गिवन द वर्ड्स लाइक क्लैभ्यम, अकीर्तिकरम, अस्वर्ग्यम, अनार्यजुष्टम, Krishna seemed to be thinking of Arjuna as a coward, someone who had to be told to get up and do what had to be done. अभी जिन शब्दों के इस्तेमाल श्री कृष्ण परमात्मा ने किया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण अर्जुन को दुर्बल समझ रहे थे, कृष्ण अर्जुन को कायर समझ रहे थे। ये प्रतीत होता है, बल्कि वो अर्जुन नहीं था। उनके वर्ड शब्दावली से हमें ये लगता है श्रोताओं को कि कृष्ण शायद अर्जुन को कायर समझ रहे थे। तो और उसको उठाने के लिए, अर्जुन को उठाने के लिए वो ये शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अनार्य जुष्टम वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो करना है वो करो, जो नहीं करना है वो न करो। आर्य की जो डेफिनेशन था, अनार्य जुष्टम, अनार्य मत बनो, उठो, ऐसा।
So Krishna Arjun ne, he has never heard such words in his lifetime and certainly never expected to hear them from someone like Shri Krishna Paramatma of all people. अर्जुन ने कभी नहीं सुना था, अपने जीवन काल में ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे और निश्चित रूप से कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि श्री कृष्ण परमात्मा से ऐसे शब्द सुनना पड़ेगा। तो सिंस उसने सुना, तो अभी क्या बोल रहा है, ही वॉन्टेड टू काउंटर ऑल द भगवान स्टेटमेंट्स। तो श्री कृष्ण ने जो उसको कायर बुलाया, बल्कि जबकि वो कायर नहीं था, तो वो उसका काउंटर देना चाहते थे, तो इसलिए ये श्लोक आ रहा है। तो इस श्री कृष्ण परमात्मा को जवाब देना चाहते थे, जवाब यानी प्रतिवाद, प्रतिवाद करना चाहते थे। वो अपनी तरफ से जो जो पॉइंट्स है वो श्री कृष्ण परमात्मा के सामने पुटअप करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि वो धर्म में भी फंस चुका है, धर्म का डेफिनेशन में फंस चुका है। ये बड़े लोग हैं, पूजारे हैं, पूजारह हैं, पूज्य योग्य हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके साथ मैं ये लड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कायर नहीं हूं। नाउ देयरफॉर अर्जुना वो सोच रहा है, इट इज इजी फॉर यू टू टेल मी नॉट टू हैव दिस काइंड ऑफ वीकनेस। हाउएवर द प्रॉब्लम हियर फॉर मी इज नॉट फियर। अर्जुन का प्रॉब्लम फियर नहीं था मेरे लिए। अर्जुन बोल रहे हैं मेरे लिए यहाँ समस्या डर नहीं है। डर अर्जुन के डिक्शनरी में था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशंस में देखा कि ऑलरेडी उन्होंने परास्त किया है कौरवों को। तो वो बोल रहे हैं दैट इज नॉट व्हाई आई वांट टू लीव द बैटलफील्ड, आई वांट टू लीव बिकॉज ऑफ माय कंपैशन एंड माय कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। अर्जुन बोल रहे हैं मैं करुणा और धर्म की अपनी अवधारणा के कारण छोड़ना चाहता हूं। मैं अपने धर्म, अपना धर्म की परिभाषा, मेरे लिए जो धर्म लगता है और मेरे अंदर जो करुणा है, उसके कारण मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं और डर इसका कारण नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट पुटअप करना चाहता है, दिस इज वन आर्ग्यूमेंट। तो वो बोलना चाहता है कि वो कायर नहीं है, वो सिद्ध करना चाहता है कि वो कायर नहीं है, बल्कि धर्म के बलबूते पे वो अपना पक्ष पेश कर रहा है श्री कृष्ण परमात्मा को। ना ये जो है, ये जो पूरा सिनारियो हो रहा है, Arjuna's problem was something like that of a student who wanted to protect his guru from a fly that was bothering him while the guru slept. ये जरा ध्यान से सुनिए। अर्जुन की समस्या कुछ इस तरह हो गई थी जैसे एक छात्र, एक स्टूडेंट जो अपने गुरु गुरु को मक्खी से बचाना चाहता था। वो छात्र, वो मक्खी जो है, वो गुरु को सोने नहीं दे रहे थे, वो मक्खी उसको परेशान कर रही थी। तो स्टूडेंट ने क्या किया, he took a big stone and killed the fly and also killing the guru in his process. उसने एक बड़ा पत्थर लिया और मक्खी को मार डाला, और इस प्रक्रिया में क्या हो गया, वो अपने गुरु को भी मार मार दिया। वो मक्खी जो है वो गुरु के सर पे बैठा था। सो यहाँ पे ये समझिए, दिस इज अ मेटाफर। ये समझिए यहाँ पे क्या हुआ, वो मक्खी को मारने को जाके वो गुरु की हत्या कर दी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ एप्ट मेटाफर। यहाँ भी इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग धर्मा, the very people who are supposed to live dharma, protect dharma and hand it over to the next generation, we're all following adharma. ये वही लोग हैं, भीष्म और द्रोण इंक्लूडिंग अर्जुना, जिन्हें धर्म का पालन करना चाहिए था और इसे अगले पीढ़ी को सौंप देना चाहिए था, वही धर्म का पालन न करते हुए अधर्म का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मक्खी को मारने को जाके गुरु की हत्या हो रही है। तो वो देखिए, मक्खी को मारना एक तरफ एक है और गुरु की हत्या दूसरा है। यहाँ पे युद्ध छोड़ने का अधर्म मक्खी को मारने जैसा है, लेकिन उसका परिणाम कौरवों के हाथ में जो लगना, वो तो गुरु हत्या टाइप है। समझ रहे हैं, मक्खी मक्खी को मारने के प्रक्रिया में गुरु की हत्या हो गई। टू किल द फ्लाई ही किल द गुरु। तो छोटे छोटे से इस युद्ध, ये धर्म की परिभाषा से बाहर आके छोटे से
इस युद्ध से बचने का जो तरीका था वो छोटा अधर्म होता, लेकिन इसका परिणाम जो होता निकल के आता वो भयंकर परिणाम था, भयंकर अधर्म हो जाता। और अर्जुन अपने धर्म का डेफिनेशन पेश करने की कोशिश कर रहा है। इन अर्जुना's परसेप्शन दिस वॉर वुड नॉट प्रोटेक्ट धर्म। अर्जुन की धारणा में ये जो युद्ध हो रहा था, इस युद्ध से धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। No, it was also very clear to him that the result of this battle would definitely not give him any happiness in this lifetime. तो इस युद्ध के परिणाम से, इस लड़ाई के परिणाम से निश्चित रूप से ही अर्जुन के जीवन में कोई खुशी नहीं उत्पन्न होती। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्जुन सोच रहा है मैं युद्ध करके मुझे क्या खुशी मिलेगी, सबके अपने भाई बंधु गुरुजनों को, पिताजनों को, इन सब लोगों को मार के मुझे क्या खुशी मिलेगी। सो ये तो हो गया दृष्ट फल, टैंजिबल बेनिफिट्स इन लाइफ टाइम। दृष्ट फल मतलब टैंजिबल, अभी इस जीवन में मेरे को जो फल मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे। एक होता है अदृष्ट फल। अदृष्ट फल मतलब मरने के बाद, हेवन एंड हेल। Nor did he see any kind of heaven for himself after death, because to destroy the entire Kuladharma was an act of sin. मृत्यु के बाद जो मिलता है उसको अदृष्ट फल बोलते हैं। अभी जीवन में जो मिलता है, आप पुण्य करोगे, आपको यहीं पे मिलेगा फल, उसको बोलते हैं दृष्ट फल। आप मरने के बाद जो फल मिलता है उसको बोलते हैं अदृष्ट फल। तो यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा तो नहीं, यहाँ तो मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा, कोई खुशी का जरिया ही नहीं रहेगा, मेरी जिंदगी में खुशी चली जाएगी। यहाँ अभी अगर जिंदा बच गया, अगर स्वर्ग अभी है, मृत्यु है, जो भी है, मृत्यु लोक के बाद, सो वो बोल रहा है कि वहां मुझे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग का द्वार भी बंद हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण कुल धर्म का नष्ट का कारण मैं ही बन जाऊंगा। मेरे मेरे ऊपर इमेंस पाप लग जाएगा, क्योंकि मैंने खुद अपने कुल धर्म को नष्ट किया है। संपूर्ण कुल धर्म, संपूर्ण कुरु वंश को ही मैंने ध्वंस कर दिया, इसका पाप मुझे लगेगा। जीते जी मैं असंतुष्ट रहूंगा, मरने के बाद तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। दोनों बोलता है, दृष्ट फला दृष्ट फला। So he would have to live with the thought that he would have destroyed all these people. तो अगर वो बच भी गया तो अपने जीवन के बाकी काल में यही सोच के वो बिताएगा कि अपने बंधुजनों को मार दिया है, सभी लोगों को मार दिया है। तो ये उसको गिल्ट फीलिंग जिंदगी भर रहेगा, इसी सोच के साथ उसको जीना होगा, ये गिल्ट फीलिंग के साथ जीना होगा। तो कोई खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। Therefore, there would neither be a Drushtaphala and there would not be any Adrushtaphala. So, एक tangible इस जीवन में एक फल है वो भी नहीं मिलेगा, और मृत्यु के बाद मेरे को डेफिनेटली स्वर्ग लोक नहीं मिलेगा। ये पॉइंट्स पुट अप कर रहा है, ये पॉइंट्स पुट अप कर रहा है अर्जुन। वो बोलना चाहता है, तार्किक तौर पे बोलना चाहता है कि मैं डरपोक नहीं हूं, मैं धर्म की परिभाषा पे युद्ध नहीं लड़ना चाहता। So if Drona and Bhishma were destroyed, and assuming that Arjuna was going to destroy them, what kind of happiness would he possibly have? अगर द्रोण और भीष्म की हत्या हो जाती है और अर्जुन के हाथों ही होती है, तो किस तरह की खुशी अर्जुन को प्राप्त होगी? ये कुछ प्रश्न है अर्जुन के मन में, इसका समाधान मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रश्न तब कर रहे हैं। तो वो ये भी बोल रहे हैं, अर्जुन ये भी पॉइंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम नॉट विथड्रॉइंग फ्रॉम बैटल आउट ऑफ कॉवर्डिस, बट बिकॉज इट इज इम्प्रॉपर फॉर मी टू अटैक माई सुपीरियर्स, इट इज अगेंस्ट माई धर्मा। तो मैं ही सेइंग मेरे वरिष्ठों के ऊपर मैं हमला कर नहीं सकता, मेरे ज्येष्ठ लोग जो हैं, मेरे वरिष्ठ जो हैं, उनके ऊपर हमला करना अनुचित है। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स मिलेंगे।
मैं कायरता के कारण युद्ध छोड़ के नहीं जा रहा हूं, मैं अपने मन की कमजोरी के कारण युद्ध छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा हूँ। बल्कि मेरा कारण ये है कि मैं अपने वरिष्ठों के साथ, अरे अपने वरिष्ठों के ऊपर हमला करना नहीं चाहता हूँ, ये अनुचित है। मैं अपने पूज्य जनों पे, अपने ज्येष्ठ जनों पे हमला नहीं कर सकता, ये अनुचित है। The point he was making to Krishna was that he himself could not sin by exchanging arrow with them. मैं उनके ऊपर तीर का वार नहीं कर सकता। जो फूल की माला पहनाने के योग्य हैं, उनके ऊपर मैं तीर का वार नहीं कर सकता। ये पाप मुझसे नहीं होगा। He was not ready to commit that sin. उसकी धर्म का परिभाषा में उसको भ्रमित हो गया, कंफ्यूजन हो गया। He would rather die than draw the arrow that would destroy Drona and Bhima, his teachers. वो तीर खींचने के बजाय मर जाना पसंद करता था। He was in that frame of mind. तो वो बोलते हैं, he did not know the meaning of fear, which Krishna knows as well. तो वो अर्जुन को वो भय का डेफिनेशन ही पता नहीं था। अर्जुन को भय क्या है ये पता ही नहीं था। ये कायर था, भय की वजह से मैं जंग नहीं करना चाहता हूँ, ये बार बार बोल रहा है। मतलब ये उसको, कृष्ण को ये पॉइंट पुट अक्रॉस कर रहे हैं। अनुचित होगा मेरे ज्येष्ठ जनों से, वरिष्ठ जनों से लड़ना, हमला करना, तीर से वार करना अनुचित है। ये इस प्रकार का एक आर्ग्यूमेंट पुट अप कर रहे हैं। इसमें एक लाइफ लेसन आता है। अ ब्रेव मैन कैन बी सिंपैथेटिक। ध्यान से सुनिए, एक बहादुर आदमी सहानुभूति रख सकता है, दयालु बन सकता है। एक बहादुर आदमी दयालु बन सकता है। बट अ coward who is sympathetic has a problem because his sympathy ends in distress. His sympathy is of no use. Coward's sympathy is of no use. जब एक बहादुर आदमी सहानुभूति दिखाता है तो उस सहानुभूति के कुछ फायदे होते हैं दूसरे आदमी को। लेकिन जब एक कायर आदमी सहानुभूति रखता है तो उससे समस्या, संकट खड़ी हो सकती है। एक कायर की सहानुभूति से किसी को फायदा नहीं होता है। एक दुर्बल आदमी की सहानुभूति से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। Whereas when a resourceful, courageous, skillful person is sympathetic, their sympathy can be useful to the other person. जब एक साधना संपन्न, जब एक साहसी, जब एक कौशल व्यक्ति सहानुभूति पूर्ण होता है, उनके सहानुभूति दूसरों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। स्किलफुल पर्सन, करेजियस पर्सन, रिसोर्सफुल पर्सन, एक संपन्न युक्त व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति, एक कौशल व्यक्ति, उनके सहानुभूति से, उनके कंपैशन से दूसरों को लाभ हो सकता है। उनके कंपैशन दूसरों के लिए काम आएगा, दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन एक कायर की सहानुभूति किसी के काम की नहीं है, ये बहुत याद रखिए। अ ब्रेव मैन शुड बी sympathetic, a rich man should be magnanimous, and a knowledgeable man should be humble. एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी को सहानुभूति दिखाना चाहिए। एक अमीर को उदार होना चाहिए, एक अमीर को उदारता दिखाना चाहिए, एक अमीर को उदार बनना चाहिए। एक ज्ञानी को हमेशा विनम्र होना चाहिए। A knowledgeable person must always be humble. एक ज्ञानी को विनम्र होना चाहिए। ये डाइकोटोमी है, बट दे हैव टू बी बैलेंस्ड। एक बहादुर को सहानुभूति दिखाना चाहिए। एक अमीर जिसके पास संपत्ति भरा पड़ा है, उसको उदार होना ही चाहिए। नॉलेज एंड ह्यूमिलिटी, ज्ञान और विनम्रता, मनी एंड मैग्नानिमिटी, धन और उदारता, पैसा और उदारता, शक्ति और न्याय, जिसके पास शक्ति है वो हमेशा न्याययुक्त होना चाहिए। पावर एंड जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड जेंटलनेस, बल और सौम्यता,
These two values should always go hand in hand. These must go together. ये हमेशा एक के साथ ही चलना चाहिए. एक एक गाड़ी के दो दो पहिए हैं ये. नॉलेज एंड ह्यूमिनिटी, ज्ञान और विनम्रता. ये अर्जुन की अवस्था के बारे में बोल रहा हूँ. मनी और मैग्नानिमिटी, पैसा और उदारता, और पावर एंड जस्टिस. जो शक्तिमान है वही जस्टिस, जिसके पास पावर है वही जस्टिस डिलीवर करता है. पावर एंड जस्टिस. स्ट्रेंथ एंड जेंटलनेस, जिसके पास बल है वही कोमलता सौम्यता दिखा सकता है. दीज ऑलवेज गो टुगेदर. अगर इसमें से इस एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट की कमी हो गई तो प्रॉब्लम हो गया. अ पर्सन हैविंग ओनली वन ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट्स, सच एज power without justice, strength without gentleness, knowledge without humility, money without magnanimity, so he is capable of destroying others. विद्या विनम्र के बिना, धन उदारता के बिना, शक्ति न्याय के बिना, बल सौम्यता के बिना, अगर किसी के पास ढेर सारा बल आ जाता है और उसमें सौम्यता नहीं रहती है, अगर एक आदमी के पास ढेर सारा शक्ति आ जाता है लेकिन उसको न्याय देने की क्षमता क्षीण हो जाती है, अगर एक आदमी के पास ढेर सारा धन आ जाता है लेकिन उस आदमी के हृदय से उदारता गायब हो जाती है, अगर एक आदमी के पास ढेर सारा ज्ञान आ जाता है लेकिन विनम्रता गायब हो जाती है, तो वो दूसरे आदमी को ठेस पहुंचा सकता है. अभी अर्जुन क्या था? अर्जुन वॉज अ ब्रेव मैच्योर पर्सन. A brave person, a brave, mature person can be sympathetic. एक बहादुर परिपक्व व्यक्ति को सहानुभूति दिखाने का पूरा राइट है. एक बहादुर परिपक्व व्यक्ति सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है. अर्जुन भी सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है. समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो भ्रमित होता है. A problem arises, however, when there is confusion. यहाँ पे अर्जुन भ्रमित हुआ है. Of course he is brave. Of course he is mature. Of course he can be sympathetic. लेकिन he is clouded by confusion. भ्रमित हुआ है, इमोशन से आवृत्त हुआ है. जब इमोशंस से ओवरवेल्म हो जाता है तो हमने ये भी सुना था, वो कृपयाविष्टम सारों से, सेकंड श्लोक में, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम. कृपयाविष्टम इमोशन से ओवरवेल्म्ड है, ओवर पावर्ड है, कंफ्यूजन छा जाता है. तो ब्रेवनेस किस काम का नहीं, मैच्योरनेस किस काम का नहीं. अ ब्रेव मैच्योरनेस कैन बी सिंपैथेटिक नॉट व्हेन ही इज इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. अभी अर्जुन कंफ्यूज्ड स्टेट में है तो उसको वो अधिकार, दया करने का अधिकार खो जाता है. A brave mature person can be sympathetic, but a brave mature person, if he is confused, he cannot be sympathetic. He will create a problem for himself as well as for others. अर्जुन ब्रेव है, अर्जुन मैच्योर है, लेकिन वो दया दिखा नहीं सकता क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है. कंफ्यूज विथ व्हाट? कंफ्यूज विथ द डेफिनेशन ऑफ हीज धर्मा. वो अपने धर्म को समझ नहीं पा रहा है. आगे वो समझेगा. नाउ यहाँ पे कथम भीष्म हम संख्य, यहाँ पे यही हो रहा है. Arjuna informs Shri Krishna of his reluctance to fight against Bhishma, his grandfather, and Drona, his preceptor, his guru. These two people he hold in high regard, and he also tells that they are worthy of his praise and worship. Instead of weapons, he should have brought flowers and offer garlands to them. ये आराधना के योग्य हैं. ये भीष्म और द्रोण ऐसे महापुरुष है, ये आराधना के योग्य है. हथियारों की जगह उन्हें फूल डालना चाहिए, माला डालना चाहिए. सो वन सेकेंड, ये क्यों कह रहे हैं? सिर्फ भीष्म और द्रोण का ही उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि ये सबसे क्लोज थे अर्जुन से.
तो भीष्म पितामह इज वर्शिपेबल. ही हैज फेड अर्जुना इन हिज लैप विथ ग्रेट लव. पितामह ने अर्जुन को बड़े प्रेम से अपने गोद में खिलाया पिलाया था. तो जब अर्जुन छोटा था तो अपने गोद में लेके उनको लालन पोषण करते थे. सो आचार्य द्रोण इज अर्जुना's रिस्पेक्टेड टीचर. सो द्रोण का इतना अफेक्शन था, ही हैड सो मच अफेक्शन फॉर अर्जुना that he did not even teach his son अश्वत्थामा like अर्जुना. द्रोण को अर्जुन के ऊपर इतना लगाव था, इतना प्रेम था, जो धनुर्विद्या अर्जुन को दी, उन्होंने वही धनुर्विद्या अपने बेटे अश्वत्थामा को नहीं दिया. बेटे से बढ़ के ज्यादा माना अर्जुन को, बेटे से बढ़ के ज्यादा प्यार दिया, अश्वत्थामा से ज्यादा प्यार, अश्वत्थामा से ज्यादा प्यार दिया. अश्वत्थामा को जितना विद्या दिया उससे कई गुना ज्यादा विद्या उन्होंने अर्जुन को दिया. तो थोड़ा हम अर्जुन और द्रोण का रिलेशनशिप समझते हैं. तो अर्जुना जो है, अर्जुना सरपास्ड द्रोणा's एक्सपेक्टेशन इन न्यूमरस चैलेंजेस. अर्जुना ने कई चुनौतियों में द्रोण की अपेक्षाओं को पार किया. बहुत सारी चुनौतियों में अर्जुन ही एक्सीडेड द्रोणा's एक्सपेक्टेशंस. तो एक प्रसंग आता है when Dronacharya wanted to test this prince's alertness, agility, ability. तो उसने क्या किया? He created an illusion of crocodile attacking him and dragging him away in the pond. तो वहां पे क्या हुआ? Most of the princes were left dumbfounded. तो द्रोणाचार्य ने एक काल्पनिक एक ड्रामा क्रिएट किया. द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की सतर्कता, उनके अलर्टनेस और उनकी क्षमता की परीक्षा लेना चाहते थे. तो वो काल्पनिक मगरमच्छ पैदा किए. काल्पनिक है वो, इट वॉज एन इल्यूजरी क्रोकोडाइल. काल्पनिक एक मगरमच्छ को पैदा किए और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किए कि वो क्रोकोडाइल द्रोणाचार्य के पैर को पकड़ लिया और पॉन्ड की तरफ खींच रहे थे. तो द्रोणाचार्य आधा पौंड में जा चुके थे. तब सब स्तब्धीभूत हो गए, सारे राजकुमार सब स्तब्धीभूत हो गए, एकदम डम फाउंड हो गए, स्तब्ध हो गए सब. अर्जुना he swiftly fired arrows to slay the illusioned animal and द्रोणाचार्य congratulated अर्जुना for passing the test. सब लोग देखते ही रह गए, पता नहीं चला उनको उस समय करना क्या है. ये एक दिखावे का एक प्रसंग द्रोणाचार्य रचाते हैं अपने शिष्यों को टेस्ट करने के लिए. तो अर्जुन ने तुरंत वो क्रोकोडाइल को अपने तीर से मारा. तो द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए. सो एज अ रिवॉर्ड द्रोणाचार्य गेव अर्जुना द मंत्रास टू इवोक सुपर पावरफुल डिवाइन वेपन ब्रह्मास्त्र. और उन्होंने पुरस्कार के तौर पे, द्रोणाचार्य ने पुरस्कार के तौर पे अर्जुन को मंत्र दिए. उस मंत्र से अर्जुन ब्रह्मास्त्र को इन्वोक कर सकता था. बट ही ऑल्सो कॉशन्ड अर्जुना नॉट टू यूज दिस इनविंसिबल वेपन अगेंस्ट ऑर्डिनरी वॉरियर. दुर्बल वॉरियर, ऑर्डिनरी वॉरियर के अगेंस्ट यूज मत करो करके चेतावनी दी. और एक प्रसंग आता है इन वन ऑफ द ग्रेट चैलेंजेस. ये क्या करते हैं? द्रोणाचार्य सेट अप अ वुडन बर्ड ऑन अ ट्री and from across the adjacent river he asked the princess to shoot it down by striking its eye. ये तो आप सभी को पता होगा. एक चुनौती रचाते हैं. तो द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक लकड़ी का पक्षी स्थापित करते हैं. तो और एक रिवर के पार जाओ बोलते हैं और उस दूरी से वो पक्षी के आंख को मारो करके बोलते हैं, ये सारे कौरव प्रिंसेस को. तो पहला युधिष्ठिर जो सबसे
ज्येष्ठ था, जो सबसे एल्डरली था, तो उनको बुलाते। व्हेन प्रिंस युधिष्ठिर युधिष्ठिर केम फर्स्ट, धर्मराज जब आते हैं, द्रोणा आस्क्ड हिम व्हाट ही सॉ, आपको क्या दिखता है करके पूछता है। युधिष्ठिर रिप्लाइड दैट ही सॉ द्रोणा, हिज ब्रदर्स, द रिवर, द फॉरेस्ट, द ट्री एंड द बर्ड। युधिष्ठिर बोलते हैं, मुझे द्रोणाचार्य आप दिखते हो, मेरे भाई जन दिखते हैं, मेरे सामने ये जो बहती रिवर दिख रहा है, ये फॉरेस्ट घना जंगल दिख रहा है, वो ट्री दिख रहा है, और वो पक्षी दिख रहा है। सो द्रोणाचार्य बोलते हैं, द्रोणाचार्य रिप्लाइड दैट युधिष्ठिरा, तुम फेल हो गए, और दूसरे अपने भाई को भेजो करके। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, दूसरे राजकुमार भी आते हैं, वो भी असफल होते हैं। फिर अश्वत्थामा भी आता है। अश्वत्थामा भी अश्वत्थामा also gave similar replies and द्रोणाचार्य was disappointed with the whole bunch। तो अश्वत्थामा भी वही आंसर देता है, मुझे ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। तो द्रोणाचार्य सभी अपने शिष्यगण से निराश हो जाते हैं। तो अंततः when अर्जुना stepped forward, तो अर्जुन से पूछा जाता है, तुम क्या देखते हो? वो बोलता है, मैं केवल पक्षी की आंख देख सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। सो ही कुड ओनली सी द आई ऑफ द बर्ड एंड नथिंग एल्स। तो द्रोणा बोलता है, शूट करो करके। अर्जुन प्रिसाइजली ही ही डिड स्ट्राइक द बर्ड डाउन इन द आई। वो एकदम निशाना चूके बिना बर्ड के आई में मार देता है। तो एक तीसरा प्रसंग आता है। तो द्रोणाचार्य प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं कि अर्जुन को ही मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा धरती पे? तो एक दिन अर्जुन खाना खा रहे थे। वन डे अर्जुन वाज ईटिंग फूड एंड द लाइट वाज पुट ऑफ बाय द विंड। ये ऐसे ही खाना खा रहे थे, रात को भोजन कर रहे थे, हवा से बत्ती गुल हो गई। सो अर्जुन नोटिस दैट इवन इन पिच कंप्लीट डार्कनेस, even in a complete darkness, by practice hand would reach one's mouth। तो अर्जुन के जहन में आया, ये पूर्ण अंधकार में, पूर्ण अंधेरे में, रात के पूर्ण अंधेरे में अभ्यास बल से वो खाना खा रहा था। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो दिस स्टक अर्जुन एंड ही स्टार्टेड टू प्रैक्टिस आर्चरी इन डार्कनेस। जब मैं अंधेरे में खाना खा सकता हूँ अभ्यास बल से हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन से खाना खा सकता हूँ, उसी अभ्यास बल से मैं धनुर्विद्या का भी अभ्यास कर सकता हूँ। तो उसको ध्यान में आया। सो ही स्टार्टेड ट्रेनिंग बाय नाइट टू यूज हिज वेपन्स इन एब्सोल्यूट डार्कनेस एंड ही स्टडीली अचीव्ड अ ग्रेट लेवल ऑफ स्किल। तो वो रात को पूर्ण अंधेरे में अपने हथियारों का उपयोग करने लगे। वो प्रशिक्षण शुरू किया रात के अंधेरे में अपने हथियार उपयोग करने का, और लगातार कौशल का एक जो स्तर होता है वो बढ़ाते गए, वो एकदम सुपीरियर बनते गए। और द्रोणा ने ये सब देखा। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय अर्जुनस कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हिज ड्राइव, एंड ही प्रॉमिस दैट ही वुड मेक हिम द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑन अर्थ। तो ये सब देखने के बाद द्रोण ने वादा किया कि पृथ्वी पर अर्जुन को सबसे बड़े तीरंदाज बनाएंगे, सबसे बड़े तीरंदाज बनाएंगे। इससे ये सब परीक्षाओं में कहीं भी अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो अर्जुन को हरा नहीं पाए। तो इन सभी कारणों के कारण द्रोणाचार्य अर्जुन को एक सर्वश्रेष्ठ धरती के पृथ्वी के ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज धनुर्धारी बनाने का संकल्प लिया, और अपने अपने बेटे से ज्यादा विद्या दी। तो समझिए, इसीलिए वो द्रोणाचार्य को एज अ ट्रिब्यूट इस श्लोक में मेंशन कर रहे हैं। वो अपने पुत्र से ज्यादा मुझे पढ़ाया, अपने पुत्र से ज्यादा मुझे पढ़ाया, लिखाया, अपने पुत्र से ज्यादा मुझे विद्या दी। तो इसीलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं, कथम भीष्म हम संके द्रोणम च मधुसूदना, द्रोणम च मधुसूदना। तो इसीलिए उनका नाम स्पेसिफिकली यूज किया जाता है अभी, भीष्म, कथम भीष्म।
भीष्म और अर्जुन का रिलेशनशिप कैसा था? तो वो भीष्म लव्ड अर्जुन द मोस्ट। इन सब कुरु प्रिंसेस में सबसे ज्यादा लाड प्यार वो अर्जुन को ही करते थे। ये सब कुरु नंदन, ये जो कुरु वंशस्थ जो बच्चे थे, ये सब बच्चों में पांडु पुत्र थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, सबसे ज्यादा अर्जुन को वो बहुत चाहते थे। भीष्म वॉज अ ग्रेट वॉरियर ट्रेन बाय परशुराम। वो परशुराम, विष्णु अवतार परशुराम से ट्रेन किया गया एक सर्वसमर्थ एक योद्धा था। तो उन्होंने ही इंटर्न ट्रेंड पांडु एंड मेड हिम द ग्रेटेस्ट वॉरियर दैट ही वाज। तो ये पांडवों के जो पिता थे पांडु, उनको भीष्म ने ही ट्रेन किया था। तो पांडु वाज आल्सो अ ग्रेट वॉरियर। इनके जो पिता थे, पांडवों के पिता पांडु, वो भी एक बहुत बड़े योद्धा थे। He brought delight to Bhishma by conquering many kingdoms and spreading the Kuru fame all around. तो वो कुरु एम्पायर को सब जगह फैलाते गए। वो एक्सपांशनिस्ट थे। वो कुरु डायनेस्टी को बढ़ाए। पांडु पांडु तो वो भीष्म का जो सपना था वो पूरा करते गए। वो अगल बगल के सारे किंगडम्स को कॉन्कर किए। कुरु डायनेस्टी की कीर्ति सब जगह फैलाने में वो सक्षम थे। वो हासिल भी, कुछ हद तक हासिल भी कर लिया। इट वॉज अ फुलफिलिंग मोमेंट फॉर भीष्म। तो हु ट्रीटेड पांडु लाइक हिज ओन सन। वो अपने बच्चे की तरह पांडु को सिखाते थे, पांडु की देखभाल करते थे। जब उनकी अकालिक मृत्यु हो गई, तो भीष्म पांडु की जब अकालिक मृत्यु हो गई, आफ्टर पांडुज अनटाइमली डेथ, भीष्म नरिश्ड हिज सन्स। तो वो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और ये धृतराष्ट्र के पुत्र सबको देखभाल करते थे। लेकिन वहां पे the only kid who truly made Bhishma's fatherly heartbeat, who triggered Bhishma's fatherly heartbeat was Arjuna. जो पांडु के लिए एक पितृभाव था, पितृभाव को जो ट्रिगर किया था, वही अर्जुना भीष्म में वो फादरली हार्टबीट को ट्रिगर किया था। इसलिए एक स्पेशल अफेक्शन भीष्म अर्जुन को दिखाते थे। तो अर्जुना गॉट इनटू भीष्मा's lap with dirty clothes। तो वो सिल्क का कपड़ा पहनते थे। किसी को इतना सहूलियत नहीं दिया था, सिर्फ अर्जुन को ये सहूलियत दी थी कि उन्होंने भीष्म के लैब पे आके कपड़े गंदा करे, मैले करे। सो ही वो he observed this little kid grow before him and transform into the world's best archer, world's best warrior around। तो वो एक अर्जुन के अंदर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। कैसे वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना, कैसे कैसे एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना। और अर्जुना कॉन्कर्ड यवनास whom even पांडु could not conquer। पांडु तो सबसे, वो तो भीष्म से ही ट्रेन हुए थे, लेकिन वो यवनास को हरा नहीं पाए थे। लेकिन अर्जुना ने यवना करके किंगडम आता है, यवनास को भी हराया। तो उसकी कीर्ति उनके पिताजी से भी एक एक स्तर ज्यादा था। अर्जुना, उन्होंने यवनास को भी डिफीट किया जो पांडु डिफीट नहीं कर पाए। तो शौवीरा करके एक राज्य था, उनका राजा विपुल करके था। तो वो हमेशा कुरुओं के प्रति एक अनादर दिखाता था। सो ही हैड सम सॉर्ट ऑफ डिसरिगार्ड फॉर दिस कुरु डायनेस्टी। सौवीरा करके जो किंग थे विपुला, ही हैड शोन ट्रिमेंडस डिसरिगार्ड फॉर द कुरु डायनेस्टी। तो वो घृणा होती थी ये कुरु वंशजों से। तो अर्जुन ने उनको भी हराया, तो सौमित्र को भी हराया, दत्तमित्र को भी हराया। तो अर्जुन अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, सर्वश्रेष्ठ योद्धा करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया। इस कारण से भी वो भीष्म के बहुत क्लोज हुए। सो भीष्म हैड एवरी रीजन टू फील प्राउड ऑफ हिज ग्रैंडसन। वो इतने बड़े योद्धा थे, तो भीष्म की छाती फुल जाती थी। सो
And Arjuna was the one who brought laurels to Kuru dynasty, Kuru race, by winning the most difficult contest at Draupadi Swayamvar. तो द्रौपदी स्वयंवर बहुत क्लिष्टकारी था। सो सबसे कठिन प्रतियोगिता था वो। तो ऐसे सबसे कठिन प्रतियोगिता जीत कर कुरु वंश का नाम रोशन करने वाले जो अर्जुन थे, वो भीष्म पितामह के सबसे प्रिय पोते थे। ही वॉज द डियरेस्ट ग्रैंडसन ऑफ भीष्मा। ये था द्रोणा और अर्जुना का रिलेशनशिप। ये था अर्जुना और भीष्म का रिलेशनशिप। नाउ कमिंग बैक टू दिस वर्स, नाउ अर्जुना इज फेसिंग अ quandary. He either has to engage in a battle against his own family, against his own kinsmen, or he has to face dishonor by fleeing the war. तो एक दुविधा में फंस गया था अर्जुन। अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध उसको करना था, या युद्ध से भागकर अपमान के साथ जीना था, अपमान का सामना करना पड़ता। ये दुविधा अर्जुन के सामने था। तो अभी वो बोल रहे हैं, अभी एक ऐसा पॉइंट पुट अप कर रहे हैं जो कृष्ण भी अचंभित हो जाते हैं। अभी वो सुनिए। कथम अहम भीष्म द्रोणम च प्रतियोत्स्यामि। तो विराट पर्व में इन सब लोगों को हराया, लेकिन अभी वध करने की बारी है। अभी उनको हराना है, पूरा वध करना है। हाउ कैन आई kill Bhishma and Drona, who are Poojarha, who really deserve worship? तो how can I fight with arrows? O मधुसूदना अरिसूदना। यहाँ पे ये बहुत सिग्निफिकेंस आता है कि वो कृष्ण परमात्मा को मधुसूदन के नाम से ही क्यों बुलाते हैं। हरिसूदना, हरिसूदना इज डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, मधुसूदना इज किलर ऑफ डीमन मधु। अर्जुन एड्रेसेस श्री कृष्ण परमात्मा एज मधुसूदना एंड हरिसूदना। तो वही शब्दों का प्रयोग, वही नेम्स का, गुणवाची नाम का प्रयोग क्यों करते हैं। तो वो बोलते हैं, कृष्णा तुम्हारा जॉब बहुत ही सिंपल था, क्योंकि तुमने दानवों और राक्षसों का वध किया है। कृष्णा, योर जॉब वाज सिंपलर बिकॉज यू हैव डिस्ट्रॉयड डीमंस एंड राक्षसास। You did not have any conflict with your own kinsmen. तो तुम अपने स्वजनों के साथ तो नहीं लड़े। ध्यान से सुनिए, वो भी अर्जुना भी ज्ञानी था। तुम अपने स्वजनों यदुकुल के साथ तो नहीं लड़े, यदुवंशज के साथ तो नहीं लड़े। श्री कृष्ण परमात्मा यदुकुल से बिलोंग करते थे। तो तुमने राक्षसों का वध किया, और जिनका वध होना ही था। दे वर मेंट टू बी किल्ड। They were राक्षसास, दानव की जाति के लोग। They were meant to be killed and hence you killed them. अभी तो भीष्म और द्रोण है, they are not meant to be killed. यहाँ से इसीलिए वर्ड आ रहा है पूजारह, who really deserve worship. भीष्म और द्रोण तो वर्शिप के लायक है। ये तो दानव तो नहीं है। तुमने दानव का, तुमने मधु राक्षस का, मधुकैटभ का वध किया, इसीलिए तुम्हारा नाम मधुसूदन हुआ। तुमने राक्षसों का वध किया, इसीलिए तुम्हारा नाम हरिसूदन हुआ। ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम राक्षसों का वध करते हो। यू डिड नॉट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट, तुम किए, तुम अपना धर्म निभाए। मैं कैसे अपने स्वजनों को मारूं, द्रोण और भीष्म को मारूं? ये थोड़ी ना राक्षस है। अर्जुना यूजेस द वर्ड स्लेयर ऑफ डीमन मधु एंड स्लेयर ऑफ फोर्स टू एड्रेस श्री कृष्णा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को वो ऐसा हिंट दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, बहुत एक वेटेज आ गया उसके आर्ग्यूमेंट में। तुमने एक राक्षस को मारा, वो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा ना। तुम दुविधा में तो नहीं फंसे ना। तुम एक कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट ऑफ माइंड में से तो नहीं गुजरे तुम। वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एक ही डिसीजन लेना था, मारना, वो तुम मार दिए। बट आई एम नॉट फाइटिंग राक्षसास। मैं राक्षस गणों के साथ युद्ध नहीं कर रहा हूं। मैं भीष्म और द्रोण, वो आर ऑनरेबल। एक तो मेरे पितामह है, दूसरे मेरे गुरु हैं।
तो मैं कैसे इनके साथ लड़ूं? तो ये उनका प्रश्न था। फिर एक स्टोरी आता है, मधुसूदना। एक आई टेक 5 more minutes, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। मधु नाम का एक दैत्य होता था, असुर होता था। वो लॉर्ड विष्णु से मारा गया। ही वॉज किल्ड बाय लॉर्ड विष्णु इन हिज हॉर्स लाइक इनकारनेशन कॉल्ड हयग्रीवा। घोड़े जैसे एक प्राणी के आकार में, अवतार में आके विष्णु ने हयग्रीव अवतार में आके जो राक्षस, जुड़वा राक्षस थे मधु और कैटभ, दोनों को विष्णु ने मार डाला था। तो यहाँ एक्नॉलेज कर रहे हैं कृष्ण, सॉरी अर्जुन एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप विष्णु के इनकारनेशन भी हो करके। कृष्णा इज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु, दैट्स व्हाई ही इज रेफर्ड टू एज मधुसूदन। वो विष्णु के अवतार है, अवतार पुरुष है, इसीलिए उनको मधुसूदन करके संबोधित किया गया है। विच मीन्स अर्जुना इज एक्नॉलेजिंग दैट श्री कृष्ण परमात्मा इज भगवान। ये दो राक्षस थे, मधु और कैटभ। दे टुक बर्थ फ्रॉम द वैक्स दैट केम आउट ऑफ विष्णुज ईयर्स। तो विष्णु के कानों से जो मोम निकला था, वो उस मोम से वो जुड़वा पैदा हो गए। मधु और कैटभ विष्णु के कान के मोम से पैदा हो गए। तो मधु represented तामसिक गुण, which is nothing but darkness, while Kaithabha represented राजसिक गुण और एक्टिविटी। तो ये जो गुण है, तामसिक गुण और राजसिक गुण, these gunas are the basest elements of human nature. They are the fundamental energies that are present in all creation, सतो रज तम। तो ये मधु राम का जो राक्षस था, वो तामसिक गुण का प्रतीक था, अंधेरे अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता था। और जो कैटभ नाम का राक्षस था, तो वो गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता था, राजसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये जो मधु और कैटभ थे, तामसिक गुण और राजसिक गुण के प्रतीक थे। Now these two demons undertook penance for many years and many years. वो बहुत सालों तक गॉडेस लक्ष्मी की आराधना की, बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या की, कठिन से कठिन तपस्या की, until finally goddess Lakshmi appeared before them and granted them a boon. तो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने एक वरदान भी दिया। तो नाउ दे सॉट अ peculiar boon from her, इच्छा मृत्यु, the power to decide their time and means of death. तो उन्होंने ऐसा मृत्यु मांगा कि मृत्यु का समय और मृत्यु के जरिए दोनों वही डिसाइड करेंगे। ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान उन्होंने देवी लक्ष्मी जी से प्राप्त किया। मेरे मेरे मृत्यु का समय भी वही निर्धारित करेंगे और मृत्यु का जरिया भी वही निर्धारित करेंगे। तो उन्होंने वो वरदान प्राप्त किया। नाउ विद दिस न्यू पावर ऑफ इनविंसिबिलिटी, नाउ दीज टू डीमंस बिगैन टू क्रिएट हैवक। वो ये अजयता का जो अपनी नए नई शक्ति जो उन्होंने अजयता का प्राप्त किया था, उससे उन दोनों राक्षस ने उत्पात मचाना शुरू किया, एकदम तांडव मचाना शुरू कर दिया। सो उत्पात मचाने लगे। दे अटैक्ड ब्रह्मा एंड स्टोल वेदास फ्रॉम हिम व्हेन ही वाज मेडिटेटिंग। ब्रह्मा कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट देम। वो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली हो गए, जब ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, उनसे वेद उनके पास, ही इज द कस्टोडियन ऑफ वेदास, ब्रह्मा जी, उनसे वेद चुरा के लेके गए। तो ब्रह्मा जी को जब वो ध्यान से बाहर आए, ही अप्रोच्ड विष्णु हु वाज इन डीप स्लीप, वाज इन योग निद्रा। तो उनको पता चला कि ये वेद चुरा के लेके गए, तो उन्होंने विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी गहरी योग निद्रा में थे, निद्रा देवी के वशीभूत, ही वाज अंडर द स्पेल ऑफ निद्रा देवी, वो निद्रा देवी के वशीभूत हो गए थे। तो ब्रह्मा जी, ही फेल टू अवेक विष्णु, तो वो विष्णु जी को जगाने में असमर्थ रहे। तो वो निद्रा देवी की
निद्रा देवी को प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी ही टर्न टू निद्रा देवी फॉर हेल्प। ही प्रेड टू गॉडेस निद्रा देवी, महामाया भी बोलते हैं। ही प्रेड टू गॉडेस महामाया बाय सिंगिंग हिम्स एंड प्रेजिंग हर। उन्होंने भजन गाकर, भक्ति गीत गाकर, स्तुति करके देवी को प्रार्थना की। तो उन्हें पता था ओनली गॉडेस महामाया वुड वेक हिम अप फ्रॉम विष्णु स्लम्बर। तो वो जानते थे कि केवल देवी है जो विष्णु को उनकी गहरी नींद से जगा सकते हैं। तो वो वंस विष्णु वेक्स अप, तो क्या करते हैं, ब्रह्मा रिक्वेस्टेड विष्णु कि यू प्लीज डिस्ट्रॉय योर ओन क्रिएशन। ये विष्णु के कान से ही जो निकला रहता है वैक्स, उसी से ये मधु और कैटब हुए रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया विष्णु जी से, प्रार्थना की, आप अपने सृष्टि से अपने से ही जो सृष्टित हुए हैं मधु और कैटब, उनका कृपया नाश करे। वो वेद लेके गए हैं, तांडव मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। तो विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लिया। He took the form of Hayagriva, a horse-like form, and he fought with two demons for 5,000 years. 5,000 साल युद्ध हुआ और विक्ट्री किसी की भी नहीं हुई। तो विक्ट्री however remained elusive। वो क्योंकि दोनों शक्तिशाली थे, उन्होंने वरदान गॉडेस लक्ष्मी से वरदान जो प्राप्त किया था, इसीलिए विष्णु को भी हराने की क्षमता नहीं थी उनमें। तो विष्णु फाइनली डिसाइड किए कि विष्णु डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ द गॉडेस। तो अंत में विष्णु ने देवी के मदद लेने का फैसला किया। तो देवी ने सलाह दी, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देम यूजिंग डिसीट। तो देवी ने सुझाव दिया, छल कपट से, छल का उपयोग करके आप उनका संहार करो। छल से आप उनको मार सकते हो, ये युद्ध चलता ही रहेगा, वो मरेंगे नहीं, आपको छल से मारना पड़ेगा। विष्णु देन डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक। तो उन्होंने बोला, विष्णु जी ने बोला, ही टोल्ड द डेमन्स दैट ही वुड गिव देम अ बोन, मैं आपको वरदान दूंगा। तो वो असुर, वो ट्रिक ये था कि महामाया, माया उनके दिमाग पे चढ़ जाती है, भ्रमित कर देती है, असुरों को भ्रमित कर देती है, माया टेक ओवर करती है। तो असुरास वर टेकन बैक। तो 5,000 साल युद्ध करके तुम मुझे हरा नहीं पाए, अब तुम इस काबिल कहाँ हो कि तुम मुझे वरदान दोगे। वो वो महामाया के प्रभाव में आके भ्रमित होके, अहंकारित होके विष्णु को ये बोले कि तुम 5,000 साल युद्ध किया अपने सर्वशक्ति के साथ, तो तुम मुझे हरा नहीं पाए, तुम क्या मुझे वर दोगे, मैं तुम्हें वर जब दूंगा, तुम जो पूछना है पूछ लो। तो उनको लगा कि दे वर मोर पावरफुल देन विष्णु, उनको विष्णु की तुलना में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई है, उनको ऐसा लगा। दे फेल्ट दैट इट वाज देयर प्रोरोगेटिव टू बेस्टो बून्स। तो उनको लगा कि वरदान देने की बारी उनकी है, वो इतने सर्वशक्तिमान है कि विष्णु क्या वरदान देगा, वो खुद विष्णु को वरदान देंगे। तो सिंस उनको पता नहीं चला, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामाया विच मेड देम डिल्यूजनल। तो विष्णु वाज डिलाइटेड टू सी थिंग्स अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। तो वो मनी मन हंस रहा था। तो विष्णु ने बोला, तो ही विश दैट दे वुड मीट द डेथ एट हिज हैंड्स। तो विष्णु ने राक्षसों से कहा, आप लोगों का मृत्यु, आप लोगों का वध मेरे हाथों से होगा। तो राक्षसों को पता चल गया, दे रियलाइज्ड बट इट वाज टू लेट बिकॉज दे वर ट्रैप्ड। राक्षसों को एहसास हुआ कि वो फंस गए थे। सो स्टिल दे ट्राई टू सैल्वेज द सिचुएशन, दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन बाय सेइंग, उन्होंने वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। मरना तो तय ही था, लेकिन कैसे भी करके बच जाए करके एक आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने बोला कि स्थल मैं चुनूंगा, जहां पे मारने का जो है वो मैं चुनूंगा, और वो स्थल, वो स्थान ऐसा हो जहां पानी ना हो। उन्होंने ऐसा कंडीशन रखा, चलो मार भी सकते हो
लेकिन विष्णु शुड किल देम इन अ प्लेस वेयर देयर वाज नो वाटर, ऐसे स्थान पर मार देना चाहिए, मतलब ऐसे स्थान पे वध करना चाहिए जहां पे पानी ना हो। ये ये कंडीशन क्यों रखा? बिकॉज दे वेर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एंटायर अर्थ वाज फिल्ड विथ डेल्यूज। उनको बहुत वो पृथ्वी प्रलय, महाप्रलय से पूरा पृथ्वी डूब गया था पानी में। उनको अच्छी तरह से पता था कि पृथ्वी पूरा प्रलय में डूब गया था। पूरा महाप्रलय के कारण पूरा पृथ्वी पे पानी, पूरा पृथ्वी पानी से भर गया था। तो पृथ्वी पे तो नहीं मार सकता था। तो उसने उन्होंने ऐसा कंडीशन कहा। सो कृष्णा किल देम, सॉरी श्री विष्णु किल देम बाय कीपिंग देयर हेड्स ऑन हिज थाइज, अपने जंघाओं पे उनको रख के उसने सुदर्शन चक्र से उनको स्ले किया, उनको मार दिया अपने जंघाओं पे। तो उसके चर्म से जो मेधा यानी जो फैट निकला, उसी से अर्थ बना, इसीलिए उसका नाम मेदिनी, अर्थ का नाम मेदिनी हो गया। जो मधु मधु के फैट मारने के बाद जो फैट, when the fat flowed out and coagulated, it became the earth, it created the earth. So the earth is called मेदिनी। वो उसका मेधा जो बाहर आके जब संगठित हुआ, तब जाके पृथ्वी हो गया, इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। तो यहाँ पे कृष्ण का बहुत सिंपल सा रूल था। सामने राक्षस खड़ा था, विष्णु के सामने राक्षस खड़े थे, द्वंद्व नहीं था, दुविधा नहीं था, वध करना था, उन्होंने वध किया। कोई डिसीजन लेने में असमर्थ नहीं थी, कायरता नहीं था, मेंटल वीकनेस नहीं था, हृदय दौर्बल्यता नहीं था। यहाँ पे उसके व्यतिरिक्त अर्जुन उस स्थिति में पहुंच गया है, इज कॉर्नर्ड सॉर्ट ऑफ। तो उसके सामने भीष्म उनके पितामह है, द्रोणाचार्य गुरु है, दोनों पूजा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है पूजारह, पूजारह, वो पूजा रहा है। इसीलिए वो कैसे मार सकते हैं? तो उनका ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन बहुत माइन्यूटली पूछते हैं ये एल्डर्स जो रहते हैं, दे कैन समटाइम्स बी हार्श इन द बिहेवियर, बट दे शुड नॉट बी हार्शली ट्रीटेड इन रिटर्न। भले ही वो कभी कभी व्यवहार में कठोरता से हमारे साथ व्यवहार करें, भले ही वो हमारे साथ कठोरता दिखाएं, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उनके साथ प्रति व्यवहार कठोरता से न करें। अर्जुन ये पॉइंट्स पुट अप कर रहा था। दे कैन बिहेव हार्शली विथ अस, दे कैन अटैक अस, बट वी कैन नॉट काउंटर अटैक देम। वो हमारे ऊपर उनका पूरा हक है, वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, बट इट इज अगेंस्ट माय धर्मा टू काउंटर अटैक देम। यहाँ एक सटल अर्थ ये भी निकलता है, श्री कृष्ण परमात्मा आपके सामने राक्षस थे, आपके सामने आपके ग्रैंडफादर उग्रसेना जी नहीं थे, और आपके टीचर संदीपनी मुनि नहीं हैं। आप उस समय होते, अगर आप युद्ध क्षेत्र में होते, तो आपके सामने आपके ग्रैंडफादर उग्रसेना होते, आपके टीचर संदीपनी मुनि होते, तो क्या होता? दुविधा आपके मन में भी पैदा होती। तो आपके सामने इसीलिए मधुसूदन अरिसूदन करके प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपके सामने राक्षस थे। आपको एक सेकंड सोचना नहीं पड़ा आपको वध करने के लिए। आपके सामने तो आपके ग्रैंडफादर नहीं थे, आपके सामने तो आपके गुरुजी संदीपनी मुनि नहीं थे, आपके सामने उग्रसेना जी नहीं थे। अगर मान भी ले मधुसूदन आपका नाम है, तो क्या ये मधु असुर है या मधु यदुकुल के लोग हैं? आप बताओ। मतलब समझ रहे हो इसका इंटरनल मीनिंग? इफ यू से दैट मधुसूदना इज योर नेम, तो क्या अपने कुलजनों का वध किया? मधु मधु राक्षस था हालांकि, क्या मधु आपके यदुकुल के लोग थे? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। बहुत बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट था अर्जुन का। अर्जुन अज्ञान नहीं था, वो इतना ही बोलना चाहता था कि मैं कायर नहीं हूं। लेकिन ये बोलते बोलते उतने मधुसूदन अरिसूदन बोल के इतना सभी गूढ़ार्थ श्री कृष्ण परमात्मा के सामने रख दिया। तो मेरे सामने मेरे दादा और गुरु हैं,
आपके सामने आपके दादाजी उग्रसेना और संदीपनी मुनि नहीं थे, तो आपने हद वध किया, मेरे सामने वो है, मैं नहीं कर सकता। तो वो एक उसका आर्ग्यूमेंट था। Now the fundamental problem still remain unsolved. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि Arjuna was still holding on to the familiar and teacher-student relationship in the context of battlefield. अर्जुना पारिवारिक और ये शिक्षक छात्र संबंधों को लेके ही बैठा था अभी तक वो। द प्रॉब्लम वाज समथिंग एल्स, धर्म अधर्म के बीच का युद्ध था। तो वो धर्म अधर्म को छोड़ के पारी फैमिलियल बॉन्डिंग्स, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को लेके बैठ गया अभी अर्जुन। पारिवारिक रिश्तों को लेके बैठ गया, शिक्षक छात्र संबंधों को लेके बैठ गया। इसका अतिरिक्त देखिए क्या होता है। बट ऑन द कौरव साइड, भीष्मा एंड द्रोणा viewed अर्जुना एज एनिमी। एक हेयर लाइन डाउट भी नहीं था द्रोण और भीष्म में कि ये मेरा पोता है, ये मेरा शिष्य है, इनके साथ मैं युद्ध कैसा लड़ूं। वो कभी भी शिष्य और फैमिली मेंबर ऐसा कंसिडर नहीं किए। दे वेर नॉट अंडर एनी डिल्यूजन लाइक अर्जुन वॉज। भीष्म और द्रोण इतने ज्ञानी थे कि अर्जुन को शत्रु के रूप में देखा। पल भर के लिए भी नहीं सोचा द्रोणाचार्य ने कि ये मेरा परम शिष्य है। पल भर के लिए भी भीष्म ने नहीं सोचा कि ये मेरा सबसे चहीता पोता है। वो अपना धर्म बखूबी निभा रहे थे। वो अपना धर्म 100% निभा रहे थे, लेकिन अर्जुन भ्रमित हो गया। दे वर नॉट अंडर एनी सॉर्ट ऑफ डिल्यूजन, बट अर्जुन वॉज डिल्यूजनल। अर्जुन भ्रमित था, ये दोनों भ्रमित नहीं थे, ये दोनों ज्ञानी थे। फर्क था। तो एक प्रसंग ये भी आया जस्ट बिफोर द बैटल। युधिष्ठर धर्मराज जो थे, he had appealed to Bhishma and Drona to switch their sides, to come over to their sides, at least remain neutral. युधिष्ठिर भीम और द्रोण से अनुरोध करते हैं, आप पक्ष बदलो, आप धर्म की ओर से लड़ो। अधर आप तो ज्ञानी हो, अधर्म की ओर से क्यों लड़ते हो, धर्म की ओर से लड़ो, हमारे पक्ष से लड़ो। अगर वो नहीं होता, अगर आप दुर्योधन के ऋणी हो, तो आप तटस्थ रहो, रिमेन इनडिफरेंट, रिमेन न्यूट्रल, तटस्थ रहो। दोनों के युद्ध ही मत करो, युद्ध से बाहर आ जाओ। उन्होंने क्या जवाब दिया था? वी आर सब्जेक्ट्स beholden to Kauravas. We don't have any choice but to fight for दुर्योधना। हम कौरवों के अधीन हैं, हम कौरवों के राज्य में पले बड़े हैं। हमारा धर्म है, राज्य धर्म है कौरवों की रक्षा करना। और हमारा राज्य धर्म ये कहता है कि हम दुर्योधन की ओर से लड़े। और उन वो ये भी बोलते हैं उनको कोई विकल्प भी नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। तो इतना स्पष्ट धर्म का डेफिनेशन भीष्म और द्रोण का था। वो डिल्यूजनल नहीं थे, लेकिन ये अर्जुन डिल्यूजनल था। तो फोर्थ वर्स टिल नाइन्थ वर्स, फ्रॉम फोर्थ वर्स टू नाइन्थ वर्स, अर्जुन स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स टू श्री कृष्णा। नाइन्थ वर्स तक वो ऐसे ही आगे अपना जो थॉट्स है श्री कृष्ण परमात्मा के ऊपर रखते हैं, सॉरी, श्री कृष्ण परमात्मा के सामने रखते हैं। तो वो सारे जो जो व्यू पॉइंट्स है वो सामने रखते हैं। तो यहाँ पे एक कालिदास का एक रघुवंशम में, कालिदास का एक कृति है रघुवंशम। तो उसमें एक श्लोक आता है, आप सामने देख रहे हो। प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्य व्यक्तिक्रमः। आप ये जो देख रहे हो, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द, आप पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ धर्मा, नॉट रिस्पेक्टिंग दोज वर्दी ऑफ वर्शिप इज अ कॉज ऑफ बॉन्डेज। तो ये शास्त्र रीति से भी अर्जुन का पॉइंट वैलिड है।
नॉट रिस्पेक्टिंग दोज वर्दी ऑफ वर्शिप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पूजार्ह। पूजार्ह वो कैसे थे? अर्जुन और भीष्म पूजार्ह थे। दोज हु आर वर्दी ऑफ वर्शिप, दोज हु आर वर्दी ऑफ वर्शिप, नॉट रिस्पेक्टिंग देम। अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं देना इज अ कॉन्ड, एक बंधन का एक लक्षण है। बंध जाऊंगा मैं, लिबरेशन नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्य पूज्य व्यक्ति क्रमः। तो ये एक रेफरेंस भी आता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं, अर्जुन भी यही करता है, तो वर्शिपेबल है। अगर इनको हम ये करेंगे तो सच में अधर्म हो जाएगा क्या? तो आगे चल के इसका विवरण श्री कृष्ण परमात्मा देते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसका एक और डिराइव्ड मीनिंग आता है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यम च व्यक्तिक्रमः। In the place where those who are not to be worshipped are worshipped, there is offense to those who are actually worshipable. इसका एक कोरोलरी, ये अगर ये एक अजम्पशन है, इसका एक कोरोलरी आता है, अपूज्य यात्र पूजनते पूजनत व्यक्तिक्रमः। जहां पे योग्य व्यक्ति अयोग्य व्यक्तियों को वर्शिप किया जाता है, तो वहां पे जो वर्शिपेबल है उनके लिए वो ऑफेंस हो जाता है। इन अ प्लेस वेयर दोज हु आर नॉट टू बी वर्शिप्ड आर वर्शिप्ड, देयर इज डेफिनेटली एन ऑफेंस टू दोज हु आर एक्चुअली वर्शिपेबल। तो हमें प्रश्न ये करना है कि क्या द्रोण और भीष्म सही में वर्शिपेबल हैं? तो बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो दैट इज लेफ्ट फॉर सम अदर डे। नाउ अभी इसका रियल लाइफ मीनिंग क्या होता है? I would take I would take few case studies and few stories just to drive across the point. ये, how can we relate this example to our daily lives? हम हम टेक अवे क्या लें, हम इसको अपने जीवन में कैसा इसको ले? Now think of a mentor or a spiritual guide or a guide who have mentored their mentees. आप, and like any respectable or any responsible mentors, they would definitely guide their mentees as to what is right and what is wrong. एक responsible mentor या responsible guru, responsible guide अपने शिष्य जनों को क्या सही है क्या गलत है ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ज्ञान देता है, उतना काबिल बनाता है कि सही क्या है गलत क्या है इसका डिफरेंशिएशन आप समझो। तो this is the responsibility of a responsible mentor to ensure, to guide them appropriately as to differentiate what is right and what is wrong. Now अभी मान लीजिए during the job, आपके जॉब के तहत, when mentees figure out unethical things done by mentors themselves, ये जो बोलने वाले हैं, ये गुरु मंत्र या जो सिखाने वाले हैं, अगर वही गलत काम करते हैं, अनएथिकल थिंग्स करते हैं, और उन्हीं से सीखे गए शिष्यगण जब वो देखते हैं, व्हाट शुड दे डू? सो now they possess the ability to think for themselves and they are well within their rights to point it out to them. अभी मेंटोर लोगों ने, गाइड लोगों ने उन्हें सशक्त बना दिया, धर्म अधर्म, सही गलत, अच्छा बुरा, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, डूज डोंट्स, बी डन नॉट टू बी डन, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसका फ्रेमवर्क आपको सिखा दिया। उस तहत आप अभी सक्षम हो अपने निर्णय लेने के लिए। लेकिन जो वो सिखाता है अभी वही गलत करे, आपके मेंटोर्स ही गलत करे, आपके सुपीरियर्स ही गलत करे, आपके मैनेजर्स ही गलत करे, आपके लीडर्स ही गलत करे, एग्जीक्यूटिव्स ही गलत करे, राष्ट्र के लीडर्स ही गलत करे,
नेशंस ही गलत करे, इंस्टीट्यूशंस ही गलत करे, तो वुड यू बिकम बाई स्टैंडर्स, और वुड यू पॉइंट आउट दोज अनएथिकल थिंग्स डन बाय दोज मेंटर्स? तो इसी को लेके हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो एक ये बहुत क्लियर हो जाएगा, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे लोग जो सिखाते हैं वही जब गलत काम करते हैं, द्रौपदी वस्त्र हरण में चुप बैठे, बहुत सारी चीजों में वो चुप बैठ गए, जब वही गलत काम करते हैं तो धर्म का डेफिनेशन क्या होगा, अर्जुन जैसे लोग क्या करना चाहिए? सो दैट इज द मूट ऑफ दिस होल डिस्कशन. That's a focal point of this whole case studies and stories. Now this एक होता है, एक है मिलग्राम एक्सपेरिमेंट करके, ये बहुत सारे रियलिटी शोज में किया जाता है, बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में। एक होता है स्टोरी ऑफ मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। एक मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ये क्या है? इट इज अ सीरीज, इट वाज अ सीरीज ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। ये दिस वाज कंडक्टेड बाय स्टैनली मिलग्राम। ये 61 और 63 2 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा। ये प्रायोगिक एक सामाजिक मनोविज्ञान प्रयोग थे, एक एक्सपेरिमेंट्स थे, बहुत ध्यान से सुनिए। एक एक्सपेरिमेंट प्रयोगों की एक श्रृंखला थी, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए 61 to 63. नाउ दीज एक्सपेरिमेंट्स measured the willingness of participants to obey an authoritative figure. ये जो प्रयोग किए गए, ये जो प्रयोगों में जो पार्टिसिपेंट्स थे, प्रतिभागियां थे, वो प्रतिभागियां कितने हद तक आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने की इच्छा को मापना चाहते थे वो। दे वांटेड टू मेजर द विलिंगनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू ओबे एन अथॉरिटी फिगर। एक अथॉरिटी फिगर एज इन एक बॉस, एक कंट्री हेड, एक मैनेजर, एक कंपनी का लीडर जिसकी बात हम सुनते हैं, हमारे ऊपर एक अथॉरिटेटिव फिगर है, हम अथॉरिटेटिव फिगर के अंडर कैसा बिहेव करते हैं वो दर्शाने के लिए एक मिलग्राम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। नाउ यहाँ पे द एक्सपेरिमेंटर इंस्ट्रक्टेड the participants to perform acts that conflicted with their conscience. ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले थे फैसिलिटेटर्स, उन्हें ऐसा कार्य करने का निर्देश दिया जो उनके विवेक और कंसाइंस के साथ विरोध, कंसाइंस के अगेंस्ट थे, उनके कंसाइंस के साथ विरोधाभासी थे। उनको वो काम करवाने पे मजबूर करते थे जो उनको पसंद नहीं थे, लेकिन उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, दे हैड टू ओबे, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया to perform acts that conflicted with their conscience. Now, in those experiments, participants were told कि they were taking part in a study, they were taking part in a process. उनको ऐसा फुसलाया गया कि वो एक अध्ययन में भाग ले रहे हैं करके उनको बताया गया इनिशियली। They were instructed to deliver electric shocks to another person who was actually an actor when the actor made a mistake. तो उन्हें, ये पार्टिसिपेंट को ये निर्देश दिया गया था कि वो एक व्यक्ति को बिजली के झटके दे, बिजली के झटके दे, और जो व्यक्ति वो बिजली के झटके खा रहा था वो वास्तव में एक अभिनेता था, वो सिर्फ एक एक्टर था। तो जब भी वो अभिनेता कुछ गलती करता था या मूवमेंट्स करता था, उन्हें बिजली के झटके देना था ये एक्सपेरिमेंट में। तो बिजली के झटके आपको जानते ही हैं, पावरफुल रहता है। आई मीन दोज वर नॉट माइनर शॉक्स, दोज वर मेजर शॉक्स। तो मेजर शॉक देते थे, देने को कहा गया था। नाउ आप इमेजिन करो, आप पार्टिसिपेंट हो, एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देना है आपको, आप इमेजिन करो। नाउ ऑफ कोर्स द शॉक्स वेर फेक, बट द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट नो दिस। तो वो बटन ऑन करते थे, वो आदमी जो था, वो अभिनेता, वो एक्ट करता था कि एज इफ ही इज अंडर ट्रिमेंडस शॉक, वो हाथ हिलाना, पैर हिलाना, शॉक लग गया, ऐसा एक्टिंग करता था। लेकिन ये जो करने वाले थे, ये इनको लगता था कि वो सही सही में शॉक दे रहे हैं।
Now, the results of this Milgram experiment, this show that this proved that a significant number of participants were willing to obey the authoritative figure. किसी ने भी, ये 2 साल तक चला एक्सपेरिमेंट 61 to 63, किसी ने भी मना नहीं किया एक्सपेरिमेंट में। मैं किसी अन्य आदमी को कैसे शॉक दूं? ये प्रयोग का परिणाम ये पता चला कि ये जो एक बहुत बड़ी जो संख्या थी पार्टिसिपेंट्स की, नियरली 90%, वो प्राधिकरण का पालन करने के लिए तैयार थे। वो जो अथॉरिटेटिव फिगर था, एक्सपेरिमेंटर था, उनकी बात मानने के लिए तैयार थे। इवन व्हेन दे न्यू दैट दे वर हार्मिंग अनदर पर्सन, तब भी वो तैयार थे जब वो जानते थे कि ये अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये this experiment suggests that people are often reluctant to defy their leaders even when they know that the leaders are doing wrong. ये जनरल साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। बिग बॉस में तो हर साल ये दर्शाते ही है, मिलकर कि शॉक ट्रीटमेंट, मतलब हालांकि शॉक नहीं देते, जो शॉक देता है देते हैं उनकी मानसिकता दर्शाती है। इससे पता चलता है कि लोग अक्सर नेताओं से भिड़ते नहीं, नेताओं को चेंज करने के लिए नेताओं को चेंज करने पे मजबूर करते नहीं, नेताओं को चेंज करने मतलब नेताओं को बताते कि नहीं वो गलत जा रहे हैं। सो that's the outcome of this experiment. This shows that everyone is reluctant to defy their leaders even when they know that leaders are wrong. Arjuna was one of them. He was reluctant to defy Drona and Bhishma even when he knows that they are wrong. ये मानसिकता है। सत्य युग में, द्वापर युग में, कली युग में कालातीत है। ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट 2 साल इन्यूमरेबल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे चलाया गया। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर रिलक्टेंट टू डिफाई देयर लीडर्स। ये मिलग्राम एक्सपेरिमेंट है। और एक स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट करके, साइकोलॉजी में बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है ये। साइकोलॉजी में स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट, प्रिजन एक्सपेरिमेंट करके एक कंडक्ट किया गया 1971 में, फिलिप जिम्बार्डो करके। तो in this experiment, participants were randomly assigned to play the role of a prisoner or a guard. Of course, the prison was a simulated prison. एक नकली जेल में पार्टिसिपेंट्स को कैदी या तो गार्ड की भूमिका निभाने के लिए कहा गया। या तो कैदी का रोल निभाओ, रोल प्ले काइंड ऑफ अ थिंग, या गार्ड की नकल करो या भूमिका निभाओ, ऐसा बोला गया। तो this experiment, this was notorious experiment. The experiment was supposed to last for 2 weeks. ये प्रयोग 2 सप्ताह के लिए designated था, 2 सप्ताह तक चलना था। It was designed for 2 weeks, but it had to be terminated after 6 days. लेकिन हालातों के मद्देनजर रखते हुए इसको 6 दिन के अंदर उनको वो उस एक्सपेरिमेंट को समाप्त कर दिया, because the guards were becoming increasingly sadistic. They tried to derive sadistic pleasure by tormenting the prisoners, and they become excessively abusive, and the prisoners were becoming increasingly submissive. इसका परिणाम ये हुआ कि गार्ड्स राक्षस बन गए, सैडिस्टिक प्लेजर लेने लगे, अत्याचार करने लगे और अपमानजनक बिहेवियर करने लगे। लेकिन कैदी वही विनम्र होने लगे, they become increasingly submissive. वो अपने रोल में सच में घुसने लगे। गार्ड्स तो एकदम सैडिस्टिक अब्यूसिव बन गए, प्रिजनर्स एकदम सबमिसिव बन गए। ये एक्सपेरिमेंट दर्शाता है कि पावर कैन करप्ट पीपल, सत्ता लोगों को भ्रष्ट कर सकता है, एंड मेक देम डू थिंग्स दैट दे वुडंट नॉर्मली डू। उन चीजों को करने के लिए मजबूर करती है जो सामान्य रूप से वो करता नहीं। ये ऑर्डिनरी लोग थे, जो एक्सपेरिमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे ऑर्डिनरी लोग थे, ऑर्डिनरी हम आप जैसे लोग। अगर गार्ड बन गए तो अब्यूजिव बन गए, प्रिजनर्स बन गए तो सबमिसिव बन गए। सो इट ऑल्सो शोज दैट it is easy for people to abuse their power when they are in the position of authority. जब अथॉरिटी में होते हैं, शक्ति का हमेशा दुरुपयोग होता है।
तो जो पावर में रहते हैं उसका हमेशा मिसयूज ज्यादा करता है, बल्कि उसका सही यूज करता हो। इसमें भी वहां पे कौरव एंटायर कुरु डायनेस्टी, दे अब्यूज्ड देयर पावर व्हेन दे आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ये तब भी वैलिड है, अभी भी वैलिड है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट corroborated द सेम। और एक आता है स्टोरी ऑफ नाजी कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविर। नाजी यातना शिविर बोलते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को गैस चेंबर में जला दिए गए, यहूदियों को गैस चेंबर में जला दिए गए। इट वाज अ नेटवर्क ऑफ कैंप्स, कंसंट्रेशन कैंप बोलते हैं, यातना शिविर बोलते हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी नाजी रेजिम के द्वारा स्थापित किया गया था। These camps were used to imprison and exterminate Jews, Jewish minorities and political opponents. ये शिविर का उपयोग यहूदियों और राजनैतिक विरोधियों, उनको पकड़ के उनको एक्सटर्मिनेट, गायब कर देना था, गैस चेंबर में जला देते थे। एंड मास एक्सटर्मिनेशन। सो उसमें जो काम करते थे, मेनी ऑफ द guards at the concentration camps were ordinary people who were simply following orders. जो यातना शिविर में जो गार्ड तैनात थे वहां पे, वो साधारण हम आपके जैसे लोग थे, केवल आदेशों का पालन कर रहे थे वो। they did not believe in Nazi ideology, but they were afraid to defy their superiors. वो नाजी विचारधारा में विश्वास नहीं करते, सामान्य सैनिक थे, वो गार्ड्स थे, लेकिन अपने वरिष्ठों की अवहेलना करने से वो डरते थे, उनको कन्फ्रंट करने से डरते थे, उनको बोलने से डरते थे कि वो गलत जा रहे हैं। बोलने के डरने का वजह से क्या हो गया, thousands of people lost their lives. As a result, they played their role in atrocities that were committed at the camps. ये नतीजा ये भी हुआ, उनकी चुप्पी के कारण वो अत्याचारों में भूमिका निभाई। अगर अर्जुन भी अपने सामने जो देख के बैठ के चुप हो जाता, if he becomes a bystander to this entire affair, then he will also have committed a crime. जैसे नाजी कैंप में एक गार्ड्स की दशा हुई थी। they also played a role in atrocities, though they were following the orders, मतलब orders of the superiors। जो अपने सुपीरियर्स का आज्ञा पालन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने उनको पता था वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सुपीरियर्स को चेंज करने की कोशिश नहीं की। दे जस्ट बिकेम अ बाई स्टैंडर्स, दे ट्राई टू फॉलो देयर ऑर्डर्स। नतीजा ये हुआ कि वो अत्याचारों में उनकी भूमिका भी रही। और एक रुवांडन जिनोसाइड करके आता है, रुवांडा नरसंहार। ये रुवांडन जेनोसाइड is a very tragic story. It was a mass slaughter of Tutsis by Hutus। तुत्सी जनांग हुटूस जनांग तुत्सी जनांग को मार दिए 1994 में। हुत्सु जनांग द्वारा तुत्सियों का सामूहिक वध हुआ। दिस जेनोसाइड क्लेम द लाइव्स ऑफ 800,000 people in the matter of just 100 days। ये इतना भयानक नरसंहार रवांडा में हुआ, इतना भयानक था कि 800,000 से अधिक लोग, ये आंकड़ा 800,000 जो है ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल नंबर गोज बियॉन्ड दैट। 800,000 लोग सिर्फ 100 दिनों में मारे गए। The genocide was carried out by Hutu extremists who targeted the Tutsi minority। ये नरसंहार हुतू चरमपंथियों द्वारा की गई थी। हुतू मेजॉरिटी लोगों के साथ हुई थी, जिन्होंने तुत्सी अल्पसंख्यक लोगों का वो निशाना बना के उन्हें मार डाला, मतलब उनके जनांग को ही मार डाला। इट वॉज अ मास जेनोसाइड।
and many Hutus who participated in the genocide, they knew that it was wrong. उनको पता था ये गलत है, but they were motivated by fear, hatred, and they were motivated by the desire to obey their leaders. उनको भय, घृण, द्वेष, ये सब प्रेरणा देता था, और वो सबसे ज्यादा अपने नेताओं का आज्ञा का पालन कर रहे थे। सिर्फ आज्ञा का पालन 800,000 लोगों का मृत्यु का कारण बना सिर्फ 100 दिनों में। Many people knew about the genocide. The world knew about the genocide, and they did nothing to stop it. अंदर के लोग तो, Rwandan people were afraid to speak up. कुछ लोग तो simply they did not even care. The inaction of these bystanders allowed the genocide to happen. राहगीरों, ये जो बाईस्टैंडर्स बोलते हैं राहगीरों, मतलब उनकी जो निष्क्रियता है, उससे ये नरसंहार हुआ। तो अनुयायी जो होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो नेताओं के मिस्टेक्स को हाईलाइट करना ही पड़ता है, वही धर्म है। अगर वो नहीं करेंगे तो रुवांडन जेनोसाइड जैसी घटनाएं होती है। यहाँ पे भी अर्जुन उनको करेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता था। मतलब कुरुक्षेत्र वार तो हो गया, लेकिन धर्म के अनुसार नहीं गए तो दीज थिंग्स विल हैपन। तो एक होता है अभी, एक एक बहुत ही, पाइड पाइपर की कहानी तो आपने सुना होगा, हैमलिन की, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। एक जर्मन फोक टेल है ये ये रैट कैचर, वो पाइड पाइपर, इट्स अ जर्मन फोक टेल। ये पाइड पाइपर वाज हायर्ड बाय द टाउन ऑफ हैमलिन टू गेट रिड ऑफ रैट प्रॉब्लम। एक मेयर, हैमलिन का मेयर पाइड पाइपर को हायर करता है, चूहों का बहुत प्रॉब्लम था उस विलेज में। सो ही प्लेड हिज फ्लूट, वो जो भी वाद्य था उसको प्ले किया, एंड द रैट फॉलोड हिम आउट ऑफ द टाउन। तो वो वहां के समुद्र तट पे गया, तो रैट फॉलोड द ओशन, तो सारे रैट्स मर गए। तो however the mayor of Hamlin refused to pay the Pied Piper the agreed upon fee after the job was done. काम होने के बाद मेयर ऑफ हेमलिन रिफ्यूज किया, तो पाइड पाइपर भी चुप रह सकता था। लेकिन ये कहानी ऐसा है, बगावत करता है। दिस पाइड पाइपर देन प्लेड द फ्लूट अगेन, और इस टाइम क्या हुआ, दिस टाइम द चिल्ड्रन ऑफ हैमलिन फॉलोड हिम आउट ऑफ द टाउन एंड दे वर नेवर सीन अगेन। तो धर्म के हिसाब से mayor of Hamlin had to pay the Pied Piper the agreed upon fee। नहीं दिया तो पाइड पाइपर ने क्या किया, he played the flute again। वो नाद इतना आह्लादपूर्ण था, तो सारे बच्चे वो नाद को फॉलो करते गए, टाउन से बाहर लेके गए, समुंदर में चला गए, सारे बच्चे चले गए। they were never to be seen again। It's a very cautionary tale about the consequences of not standing up to the authority figure who are doing wrong। तो ये एक कहानी ऐसा है जो बदला लेता है। ऐसे कहानियां भी हैं जहां पे पाइड पाइपर फॉट लाइक अर्जुना अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स, अगेंस्ट द ऑपरेसर्स, अगेंस्ट देयर लीडर्स। और एक दो कहानी है बस, आई जस्ट वाइंड इट अप। ये मैं कुछ कहानियां इसलिए बता रहा हूं कि कहीं पे दुविधा नहीं होने का। इफ someone is doing wrong, some of your superiors are doing wrong, some of your leaders are doing wrong, you are well within your rights to point it out to them। Varna, I'll tell you, the consequences are very immense। तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक रोजा पार्क्स, she was an African American woman, and she refused to give up her seat on a bus to a white man in Montgomery, Alabama। एक कहानी होता है हिस्ट्री में, घटित कहानी, मतलब ये सारे घटित है, अपार्ट फ्रॉम दैट पाइड पाइपर, वो काल्पनिक कहानी है, फिक्शियस टेल। ये रोजा पार्क जो थी वो अफ्रीकन वुमन थी, तो शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन। वाइट मैन के लिए
एक अलग होता था, व्हाइट मैन ही बैठ सकते थे. दिस वाज ड्यूरिंग द डेज ऑफ during those days where segregation used to happen on public buses. वाइट लोग अलग, ब्लैक लोग अलग, ऐसा 1950s के दौरान की घटना है ये. वो ऐसा सेग्रीगेशन होता था पब्लिक बसेस में. यहाँ पे सिर्फ वाइट लोग ही बैठ सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक लोग ही बैठ सकते हैं. तो उसने अपना सीट एक वाइट मैन को देने से मना कर दिया. ये घटना बहुत फेमस है, मॉन्टगोमरी अलाबामा में हुआ था. Now this act of defiance sparked the Montgomery bus boycott. ये ये जो इवेंट था, दिस एक्ट ऑफ डिफायंस, मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार का जन्म दिया. आई मीन दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल सेग्रीगेशन. वो एक चिंगारी था, एक छोटा सा इंसिडेंट विच विच लेड टू, क्या बोलते हैं, अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट. एक छोटा सा, दिस स्मॉल एक्ट ऑफ डिफायंस मार्क्ड अ वेव ऑफ, वेरी बिग वेव ऑफ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशंस. ये मतलब एक छोटी सी चुनौती दी एग्जिस्टिंग कानून के खिलाफ. तो उससे वो पूरा जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट ही चालू हो गया एक छोटी चिंगारी के कारण. हर contributions led to civil right movement. This movement extended beyond this one incident. ये बहुत बड़ा एक छोटा सा चिंगारी एक आग के रूप में ले लिया. सो when you stand against what is wrong, एक छोटा सा, भले ही when you stand up against injustice and fight for equality and fight for what is right, तो वो भले ही एक छोटा चिंगारी क्यों ना हो, वो आग का रूप ले ही लेगा. सो ये कहानी आता है. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन सो फार? I mean, should I wind up, or do you want to listen to a few more case studies? Sir, I want to know something. Actually, this is my means I have joined today, but I missed the previous logs. So how can we listen, sir? So I'll share. I think I have uploaded it on YouTube videos and on YouTube. Sorry. So I'll share that playlist. You can go through those playlists. Yes, sir. From where can I get, I'll sir? share the link in the group. Okay, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Okay. Do you want to listen to a few more case studies, or should I wind up? Sir, you can continue if you want, sir. Acha. Very interesting, sir. Thank you. Okay. एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, टस्कीजी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट करके. दिस टस्कीजी सिफिलिस आपको पता है, गोपनीय रोग है. दिस सिफिलिस एक्सपेरिमेंट वाज अ मेडिकल स्टडी. दिस वाज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विस. ये 1932 से 1972 तक चलता गया एक्सपेरिमेंट. 40 साल, लगभग 40 साल ये एक्सपेरिमेंट चलता गया. इसमें देखिए इतना डार्क स्टोरी है ये. This study involved 600 African American men who were infected with syphilis, but they were not given treatment, even though the treatment was available. इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, टस्कीजी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट करके बोलते हैं, 600 अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो सिफिलिस से इन्फेक्टेड हुए थे, उनको स्टडी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था.
Now, the experiment was followed for 40 years to study the natural progression of disease. ये जो रोग है, ये प्राकृतिक रीति से कैसा प्रगति होता है उसका अध्ययन करने के लिए उनको 40 साल तक वो सड़ने दिया. वो syphilis, even though the treatment was available, they were not given the treatment just to understand how the disease progresses naturally, just to study the natural progression of the disease. These men were allowed to suffer for 40 years. It was a gross violation of human rights. मानव अधिकारण का मानव अधिकारी, ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका घोर उल्लंघन हो गया इधर. मतलब इट वाज अ ग्रॉस एक्सट्रीम वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. और ये जो 600 अफ्रीकन अमेरिकन मेन थे, those who were involved in this study were not given informed consent. Informed consent was not taken from them, and they were not treated for the disease even when the effective treatment was available. वो बीमारी का इलाज नहीं किया गया जबकि इलाज मौजूद था. So this experiment shows the importance of speaking up against unethical research practices. जहां पे भी unethical practices होते हैं, अनैतिक प्रथाओं के अनैतिक प्रथाएं जहां पे भी होती हैं, उनके खिलाफ हमें बोलना चाहिए, नहीं तो ह्यूमैनिटी विल सफर. ये लोग 40 साल तक सफर करते रहे. And it also shows the dangers of trusting authoritative figures blindly. ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले थे, ये लोग इतने होशियार नहीं थे. तब के ज़माने में इंटरनेट वगैरह नहीं था, इंफॉर्मेशन इतना फ्रीली फ्लो नहीं होता था, तो दे ट्रस्टेड दोज अथॉरिटेटिव फिगर्स ब्लाइंडली. तो ये सभी दर्शाता है कि यू कैन नॉट, इट शोज द डेंजर्स ऑफ ट्रस्टिंग अथॉरिटेटिव फिगर्स ब्लाइंडली. अपने लीडर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने सुपरवाइजर्स को अगर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो ये सभी परिणाम निकलता है. तो एक ये एक्सपेरिमेंट था. तो और I'll just wind up since it is getting late. एक वोल्क्सवैगन डीजल गेट स्कैंडल करके एक बहुत फेमस, इनफैक्ट इनफेमस रियल लाइफ एग्जांपल है. ये कॉर्पोरेट डोमेन में बहुत बहुत फेमस है. ये वोल्क्सवैगन डीजल गेट स्कैंडल करके, ये 2015 में हुआ था, डीजल गेट स्कैंडल करके. ये वोल्क्सवैगन इज अ वेरी रिनाउंड जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर. सो उन्होंने क्या किया, they had installed a software in diesel vehicles to manipulate emission tests and fraudulently meet regulatory standards. तो उन्होंने क्या किया, उनके डीजल इंजन्स खराब थे 2015 में, बहुत ही खराब थे. तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो डीजल व्हीकल्स में, डीजल इंजन्स में, जो वो एमिशंस, इवन दो दे वर एमिटिंग ऑल कार्बन एमिशंस, वो एमिशन टेस्ट को मैनिपुलेट करते थे. एमिशन टेस्ट्स को अंडर कंट्रोल दिखाता था वो सॉफ्टवेयर. एंड दे फ्रॉडुलेंटली मेट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड. जो भी वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, व्हीकल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स थे, वो एक फ्रॉडुलेंटली उन्होंने उसको मीट करने की कोशिश किया. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड there were many employees, numerous Volkswagen employees were aware of this wrongdoing, including engineers, including software developers, including high level executives. सबको पता था कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जो एमिशंस को कम दिखा रहा है, बहुत ही सप्रेस्ड लेवल्स, डिफ्लेटेड लेवल्स दिखा रहा है करके. बट वेरी फ्यू एम्प्लॉयज डेड टू चैलेंज देयर लीडर्स एंड एक्सपोज देयर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस. यहाँ पे क्या हुआ, द फियर ऑफ रिपरकशंस, जॉब सिक्योरिटी और लॉयल टू द कंपनी प्रिवेल्ड ओवर देयर मॉरल ऑब्लिगेशंस. अभी
वो सोच रहे थे कि अगर वो प्रेस रिलीज करेंगे या बाहर इसका खुलासा करेंगे विसल ब्लोअर की तरह, तो उसका रिपरकशंस बहुत सारे होंगे, जॉब निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, वो चुप रहे, सब देखते हुए चुप रहे। दैट प्रिवेल्ड ओवर देयर मॉरल ऑब्लिगेशन। अंदर पता था उनको कि वो गलत कर रहे हैं, बट टू कीप देयर जॉब सेफ दे हैड टू कीप क्वाइट। नाउ अल्टीमेटली क्या हुआ, this lack of defiance allowed the wrongdoing to continue for several years, leading to severe negative consequences. जब ये external investigation हुआ, when the scandal was eventually uncovered by external investigation, Volkswagen faced enormous legal fines, reputational damage, a huge decline in sales. There was the trust was eroded. The public trust in the brand was shattered, and hell number of employees lost their jobs. इसका repercussions बहुत ही huge थे, enormous थे। एक दौरान वॉक्सवैगन का ब्रांड वैल्यू इतना डाइल्यूट हो गया कि कोई वॉक्सवैगन की गाड़ियां खरीदने में हिचकिचाते थे। अगेन दे हैड टू do lot of damage control measures, they have to salvage the situation, they had to control the damage। फिर उनको बहुत टाइम लगा वापस मार्केट शेयर को रिकैप्चर करने में। तो रिपरकशंस बहुत गहरे होते हैं when you see the wrongdoing and you don't report it. So this is one takeaway which we can take from this session. So जहाँ पे भी दिखे, you have to point it out very subtly though, very subtly though. So of course you have to be very practical, but मतलब ये है, not at that level। अगर एक छोटा, अगर आपका कोई मैनेजर गलती करता है, सुपीरियर्स गलती करते हैं, हमारे बड़े गलती करते हैं, तो तुम हमें ये समझ के चुप नहीं बैठना है कि वो बड़े हैं उम्र से, या वो हमारे कद से बड़े हैं, ओहदे से बड़े हैं। तो हमें फर्ज बनता है कि वी विल हैव टू सटनली पुट इट अक्रॉस टू देम। तो इधर भी अर्जुन का वही हाल था, पूजार है वो, दे आर वर्दी ऑफ वर्शिपिंग अर्जुन एंड भीष्म, बट धर्मा डिक्टेट्स दैट he had to point it out to them and he had to fight them। तो धर्मा का ये डिक्री है कि वो उनसे लड़े। वो बड़े हैं, वो पूजा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो धर्म अधर्म के पक्ष में है, इसीलिए उनको लड़ना पड़ेगा, अर्जुन को लड़ना पड़ेगा। सो दैट्स अबाउट श्लोका 4। खतम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह भरिसूदन। तो वही बोलना चाहते हैं अर्जुन। तो ये तो पुजार है द्रोण और भीष्म में, इनके अगेंस्ट इशुभि प्रतियोत्स्यामि में अपना बाण कैसे चलाऊं। ये पुजार है मधुसूदन हरिसूदन, तुम तो राक्षसों का वध किए, तुम्हारे सामने तो ये दुविधा नहीं थी। मेरे सामने तो मेरे पितामह और गुरुवर्य हैं, गुरु आचार्य हैं, उनके अगेंस्ट में बाण कैसा चलाऊं। और ये भी बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैं कायरता या डर के कारण युद्ध से भाग नहीं रहा हूँ, धर्म संकट में हूँ, दुविधा में हूँ, अपने स्वजनों अपने गुरुजनों के साथ कैसा अगेंस्ट कैसा वार करूं। ये इसका तात्पर्य है। सो किसी को कुछ पूछना है? ओके, आई अज्यूम योर साइलेंस हैज नो क्वेश्चंस। तो हम ये सेशन की समाप्ति करते हैं और सैटरडे को मिलते हैं रात को 9 बजे। Sir, please send the playlist. I'll surely send. Yes, sir. I'll drop them in the group. Sure. Yes, sir. By the way, sir, nice session this one. Thank you. Thank you. Thank you. चलिए फिर सैटरडे को मिलते हैं। Okay, sir. Shubh Ratri, sir. Good night, sir.
Good night, Raj sir. Good night. Good night.